Once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, relative and friends are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो था, दैट वाज द ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने स्टेशनरी रखा था, उसको मूव नहीं किया था। बट इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट मूव द चार्ज को मोशन में लाए। तो जैसे ही चार्ज को मोशन में लाते हो तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। तो मैं एक बार आपको वापस से ये चैप्टर में हमने कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस किए वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो नोट्स है, क्या मैंने ये आपके व्हाट्सएप में ये नोट्स मैंने भेज दिया आपको? हाँ सर, नोट्स भेज दिया, अच्छा गुड। तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे आई थिंक 7th, 8th एंड 9th क्वेश्चन शायद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम आगे क्वेश्चन लेने वाले हैं, बट एक बार फिर से कुछ बच्चे अभी 7 o'clock को ज्वाइन होने वाले हैं। तो अप टिल नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज एंड मेमोराइज यू what we had learned so far in this chapter. Okay. So I think on your mobile there is a whiteboard. Is there? Is it there? आपके मोबाइल के स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आ गया होगा, है वहां पे? यस सर। ओके, देखो चैप्टर जो है दैट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट डिस्कस किया। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? dq by dt. Yeah, the formula of electric current is a dq by dt. After that we had discussed the concept of current density. That was denoted by J. कोई मुझे बताएगा what was the formula of the current density? I by That was the current passing perpendicularly per unit area. So from that we had discussed that I is equals to integration j dot dA, and if j is constant, and cross section is perpendicular, so in that kind of circumstances we can say Ija. So that we had learned. After that we had discussed the Ohm's law. We had discussed the ratio of V and I always remains constant, and that constant ratio is named as a resistance of the conductor. So that was the Ohm's law, and we also had discussed the limitation of the Ohm's law. Ohm's law and its limitation we had discussed. We had also discussed the resistance are dependent on the 3 parameters. कोई मुझे बताएगा on which 3 parameters the resistance does depend? Cross sectional area, Okay. Temperature and material of the substance. Type of material, temperature and dimension. temperature and the dimensions, right? So limitations of Ohm's law. So resistance is dependent on the 3 parameters: type of material, temperature and dimensions. उसके बाद हमने ये भी देखा था
कि how does the resistance depend on the dimensions. So we come to know that the R proportional to L, but R is inversely proportional to the cross sectional area. R is proportional to the length, but inversely proportional to cross sectional area. So if we combining both the things, R proportional to L by A, and if we remove the proportionality sign, we come to know that the R is equals to rho L by A, where rho is a Resistivity. rho is the resistivity. After that we also had discussed the conductivity. उसके बाद हमने कंडक्टिविटी का डिस्कशन किया था. कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द कंडक्टिविटी? 1/ρ. The reciprocal of the resistivity was a conductivity. The unit of the resistivity का जो unit था, that was a ohm into meter. But the unit of the conductivity is 1 upon ohm meter. So that is a mho meter inverse. So unit of the conductivity is a mho meter inverse. After that we derived the Ohm's law in a vector form. So anybody remember what is the formula for the Ohm's law of the vector form? किसी को पता है? What was the formula of the Ohm's law in the vector form? कोई बताएगा? J is equal to E rho. Equals E to sigma. E sigma. E by rho, and that is equal to sigma E. So that is the vector form of the Ohm's law. ये हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम कोई कंडक्टर है और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो कंडक्टर के अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं. तो उसका रैंडम मोशन का अगर एवरेज उसका निकालते हैं, उसके वेलोसिटी का, सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन करके उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो मतलब इसका मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन का कोई नेट फ्लो नहीं रहेगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन का कोई नेट फ्लो नहीं है तो करंट 0 हो जाएगा. तो हमने ऐसा देखा था कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो द एवरेज मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज कम्स आउट टू बी अ 0. एंड एज देयर इज अ नो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, हेंस आई कैन से द करंट कंस्टिट्यूटेड हियर इज 0. तो मतलब ऐसा हुआ कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, तो भी वो खुद में खुद करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. अदरवाइज तो सोचो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. देखो मैंने ये रिंग पहना हुआ है, रिंग गोल्ड का है, तो ये रिंग जो है वो कंडक्टर है, तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो अच्छा है कि वो इलेक्ट्रॉन खुद में खुद करंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. अगर वो खुद में खुद करंट प्रोड्यूस करता तो क्या होता? सोचो, मुझे बैठे बैठे यहाँ पे झरक आता, करंट फील होता. तो मतलब क्या है कि जब तक आप वहां पे कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करते हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हो, तब तक कोई करंट फॉर्म नहीं होगा. बिकॉज नेट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कम्स आउट टू बी अ 0. बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हो तो फ्रेंड्स क्या होगा? Accelerated इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और बिकॉज ऑफ दैट इट विल गेट सम एक्सेलरेशन in the opposite direction of the electric field, and because of this acceleration it will get some drift velocity. And anybody remember the formula of the drift velocity?
सो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा, और वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के अगर जो वेलोसिटी अचीव हो रही है उसका एवरेज निकालते हैं तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका एवरेज निकालने के बाद वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला, मैंने फ्रेंड्स आप एक बार मेरे नोट्स को टेक्स्ट बुक के साथ एक बार कंपेयर कर दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आई हैड वर्कड अ लॉट फॉर द प्रिपेयरिंग नोट्स। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, उस क्वेश्चन को एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ने की ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही मतलब बेकार से दिया हुआ है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ है तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बट अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो उसका कुछ एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, एंड उसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, E/m इंटू टाउ। बट किसी को पता है ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। वेरी गुड, रिलैक्सेशन टाइम। कौन बोला? सर रिश्वा। विश्वा, मुझे ये बताओ रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन क्या है? It is a time interval between the two successive collisions. Very good. It is the time interval between the two successive collision. It is a very true answer. तो more precisely I should say it is the average time. देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग टाइम के साथ जब दूसरा कोलिजन करेंगे तो ये जो टाव है वो एवरेज टाइम है। इट इज द एवरेज टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन विद द आयंस। तो ये जो टाव है वो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन है। तो ये यहाँ पे कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला, मतलब क्या होगा कि अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मतलब कि अभी करंट जनरेट होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो करंट मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स करंट जनरेट होगा, तो अब वो करंट कितना होगा, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ड्रिफ्ट वी हैड डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी में है तो ऑब्वियसली उसका मोशन हो रहा है, अगर मोशन हो रहा है तो उसके द्वारा करंट जनरेट हो रहा है। तो कितना करंट जनरेट होगा, तो कोई बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? याद रखने का टेक्निक भी सिखाया था। NAVD. So that was the formula of electric current. Navdi. But from that we also had derived the formula of the current density. So the formula of the current and density, if you remember, it was a Navdi. And this formula in the general form I can say it is a NVDQ. If the charge is Q, then it is a NVDQ. For particularly electron, if we think about this formula for particularly electron, the negative sign should be appear. Why negative sign should be appear? Because the charge of the electron is minus E, and this negative sign is indicating that the velocity of the electron and the current direction are opposite direction. So that we know conventional current should be taken in the direction of positive charge. तो करंट का जो मोशन इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा उससे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट ही होगा। तो नेगेटिव साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आना चाहिए, वो भी प्रॉपर ही है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक सब कुछ डिस्कस किया था। मैंने अब तक जो 9 क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज किए। तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ द रेजिस्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अ रिलैक्सेशन टाइम एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी।
एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ऐसा है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टिविटी in the form of relaxation time and discuss the effect of the temperature on the resistivity. Okay, so the question is formula of resistivity in the form of relaxation time tau. अच्छा, solution. देखो हमारा टारगेट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करना है इन द फॉर्म ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। चलो, एज वी नो J is equals to N VDE and we also know that the J is equals to sigma E, Ohm's law in the vector form. तो हमने ये करंट डेंसिटी के दो फॉर्मूला डिराइव किए, J is equals to N VDE and J equals to sigma E. Now comparing both the formulas, I can say N VDE is equals to sigma E. अब मुझे ये बताओ फ्रेंड्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले हमें क्या लिख सकता हूँ? What was the formula of the drift velocity? Can anybody will tell me? upon m by tau. It is a E by m into tau. अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड से कैंसल, तो बाकी क्या बचेगा? n बचेगा, E स्क्वायर बचेगा, टाउ बचेगा अपॉन m बचेगा, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द सिग्मा। बट फ्रेंड ये जो सिग्मा है वो तो क्या है? अरे बताओ सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। तो मुझे तो रेजिस्टिविटी लाना है, तो मैं सिग्मा के बदले क्या लिख सकता हूँ? 1 upon omega 1 upon ohm 1 upon rho. That's why the formula of the resistivity is a m upon n square tau. So friend, this is the formula of the resistivity in the form of a relaxation time. So this is the formula of a resistivity in the form of the relaxation time. मुझे ये बताओ फ्रेंड्स कि यहाँ पे स्मॉल n क्या है? ये फॉर्मूला के अंदर n क्या है? n is indicating which thing? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, वेरी गुड। n इज अ नंबर डेंसिटी, राइट। जो ये जो n है वो तो नंबर डेंसिटी शो कर रहा है। अच्छा, ध्रुवी इज देयर? ध्रुवी किया? ध्रुवी इज देयर? ध्रुवी, वैभवी, सर 7:10 है लेक्चर बतवा। कितना हो गए? 7:10। ओके, सो rho is equals to m upon n square tau, where n is the number density of electron and tau is the relaxation time. अब सपोज हम कंडक्टर या मेटल की बात करते हैं, फॉर कंडक्टर और मेटल, तो अगर हम कंडक्टर के बारे में सोचते हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है
तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोचो कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका रैंडमनेस के बारे में सोचो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो व्हाट Randomness increase होगा. तो क्या होगा? Randomness increase होगा. हाँ, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस है उसका वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन दोनों इंक्रीज होगा। तो रैंडम मोशन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो मुझे ये बताओ कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा कोलिजन करेगा या कम कोलिजन करेगा? ज्यादा कोलिजन करेगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा। अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहा है तो द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम वो भी इंक्रीज होगा। बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। तो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? बोलो। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर कंडक्टर या मेटल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज ही होगा, मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो कंक्लूजन इज दैट कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर या मेटल में तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। बट अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो फॉर अ सेमीकंडक्टर फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। टेट्रावेलेंस, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन सारे सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बिकॉज एज यू नो कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही मैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में से बाहर निकलेंगे, फ्री हो गए। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रीड फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो गए तो ये जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स, अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नो डाउट वो रैंडम मोशन भी इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री है। बट उससे ज्यादा इफेक्ट ये पड़ेगा, उससे भी ज्यादा इफेक्ट ये पड़ेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक, lots of electrons is going to be free down. So because of that, the number density of the free electron increases. तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होगा तो मुझे ये बताओ कि रेजिस्टिविटी के बारे में क्या कह सकते हैं? रेजिस्टिविटी के बारे में क्या कह सकते हैं? डिक्रीजेस। देखो ये स्मॉल एंड इंक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। So finally I can say friends, the effect of the temperature on conductor and on semiconductor are totally opposite.
कंडक्टर के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, क्या ये चीज आपको समझ में आया? સર એક ડાઉટ છે हाँ बोलो। સર કંડક્ટરમાં કંડક્ટિવિટી વધારે તમારો હોવી જોઈએ. અવાજ નથી આવતો, અવાજ નથી આવતો. હા સર આવે છે. હવે આવે છે, બોલો. હા સર, તો કંડક્ટરમાં કંડક્ટિવિટી વધારે હોવી જોઈએ તો એની જગ્યાએ રેઝિસ્ટિવિટી વધારે છે એવું કેમ છે? શું બોલે છે તું? કંડક્ટર પાસે કંડક્ટિંગ પ્રોપર્ટી વધારે હોવી જોઈએ તો અહીંયા તો રેઝિસ્ટિવિટી છે જ ને, કંડક્ટર પાસે કંડક્ટિંગ પ્રોપર્ટી જ છે, પણ તમે ખોટી વસ્તુને ખોટી જગ્યાએ રિલેટ કરો છો. ખોટી વસ્તુને ખોટી જગ્યાએ રિલેટ કરો છો. મેં એવું નથી કીધું કે કંડક્ટરની રેઝિસ્ટિવિટી વધારે છે. મેં કન્ક્લુઝન એવું ડિરાઈવ કર્યું છે કે ઇફ વી ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર then its resistivity increases. એટલે એ જે પણ સ્મોલ વેલ્યુ, જે પણ કંડક્ટરનો સ્મોલ રેઝિસ્ટિવિટી છે, નો ડાઉટ એ સ્મોલ જ છે, પણ ટેમ્પરેચર તમે ઇન્ક્રીઝ કરશો તો એનો રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે ઓકે. સમજ્યા હું શું કહું છું? હા પણ સર મેટલ્સમાં તો જે રેઝિસ્ટિવિટી એટલે એ લોકો હીટ કેપેસિટી વધારે હોય એ લોકોમાં તો પછી ટેમ્પરેચર જલ્દી નહીં વધે ને. શું બોલે છે તું? મેટલ્સ પાસે હીટ રેઝિસ્ટિવિટી વધારે હશે ને, હીટ કેપેસિટી, હીટ બિયર કરવાની કેપેસિટી એ લોકો પાસે વધારે હશે. ના હોય વધારે. હીટ એટલે કેપેસિટી મેટલની ઓછી હોય. મેટલનો ટેમ્પરેચર ફટાફટ વધે. તમે મેટલને ગરમ કરો અને કોઈ વુડને ગરમ કરો તો કોણ ફટાફટ ગરમ થશે? મેટલ. પણ એ હીટ કેપેસિટી સાથે કઈ લેવા દેવા જ નથી. આપણે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી ભણી રહ્યા છીએ. એટલે જો હું તને કહું, મેટલ હોય ને એનો રેઝિસ્ટિવિટી for the metal, the resistivity of the order of 10⁻⁸ ohm into meter to 10⁻⁶ into ohm into meter. So it is a very small. And for the semiconductor, the resistivity is of the order of 10⁻⁴ ohm into meter. So as compared to the metal, the semiconductor is having a large resistivity. 10⁻⁸, 10⁻⁴. તો જનરલી મેટલનો રેઝિસ્ટિવિટી એકદમ ઓછો છે, કંડક્ટિવિટી વધારે છે, પણ ટેમ્પરેચર વધે ને તો આનો રેઝિસ્ટિવિટી વધે, પણ ટેમ્પરેચર વધે તો આનો રેઝિસ્ટિવિટી ડિક્રીઝ થશે. કન્ક્લુઝન ઇઝ ધેટ. ઓકે સર. હા બોલો. સર આપણે એમને ટેમ્પરેચર વધારીએ તો રેઝિસ્ટિવિટી વધશે તો કંડક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થશે. ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ ઓપોઝિટ. તો આપણે એવું પ્રેક્ટિકલમાં તો કર્યું છે કે અગર મેટલ રોડને હીટ કરીએ તો એક એન્ડ ઉપર તો સેકન્ડ એન્ડ ઉપર એની કંડક્ટિવિટી જલ્દી થઈ જાય. સર આમાં તો આપણે એવું કર્યું કે કંડક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થાય છે. એમને શું કહે તું ફરીથી બોલ. સર રેઝિસ્ટિવિટી વધે છે તો કંડક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થશે ને? જો પહેલા તો ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટિવિટી અને ઇલેક્ટ્રિક કંડક્ટિવિટી એવો વર્ડ આપણે યુઝ કરીશું. હવે તમારે જો આ વસ્તુને તમારે થર્મોડાયનેમિક્સ સાથે લિંક કરવું હોય તો ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટિવિટી અને ઇલેક્ટ્રિક કંડક્ટિવિટી એવું બોલીશું, અને થર્મલ રેઝિસ્ટિવિટી અને થર્મલ કંડક્ટિવિટી અલગ વસ્તુ છે. હવે બોલો, ફરીથી બોલો. ચલો. હા સર, તો થઈ ગયું, ડિફરન્શિએટ થઈ ગયું ને. ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટિવિટી અને ઇલેક્ટ્રિક કંડક્ટિવિટી અહીંયા બધું છે ભાઈ. આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ અને ટેમ્પરેચર સાથે કરસ્પોન્ડન્ટ થર્મલ કંડક્ટિવિટી અને થર્મલ રેઝિસ્ટિવિટી હોય એની વાત નથી અહીંયા. ઓકે, ઇઝ ઇટ અન્ડરસ્ટુડ? હા સર. ઓકે, so next question, this question was important and the next question is also important. The next question is
discuss the short note on the mobility. Mobility discuss करवानी है. So the new quantity come into the existence, a new physical quantity come into the existence, and that is a mobility. ચલો મોબિલિટી વર્ડ સાંભળીને તમારા માઇન્ડમાં શું આવે છે? મોશન. યા ગુડ. મોબિલિટી સાંભળીને મોશન માઇન્ડમાં આવે. પણ ઘણા છોકરા એવું પણ કે મોબિલિટી એટલે મોબાઈલ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ મોબાઈલ કરતા હોઈએ છીએ, એ મોબાઈલ નથી પણ મોબાઈલ ફોન છે. મોબાઈલ નો મતલબ એવો થયો કે જે ફ્રીલી મૂવ થઈ શકે તે. એટલે એમ તો બ્લડ ડોનેશન ની વેન જે આવે છે એ પણ મોબાઈલ વેન છે. એટલે આપણે જે મોબાઈલ બોલીએ છીએ મોબાઈલ નથી પણ મોબાઈલ ફોન બોલવું જોઈએ એકચ્યુઅલી. સો ઇટ શુડ બી અ મોબાઈલ ફોન. સો મોબિલિટી કમ્સ into the existence and the meaning of the mobility is a freeness, capacity or capability to move in the free way. So that is what is a mobility. So now the question is, why do this quantity comes into the picture? અહીંયા mobility લાવ્યા જ કેમ? Okay. So friends, actually એવું છે કે in the different kind of material, the conduction takes place with a different manner. In the different kind of material, conduction takes place in the different manner. In the case number one, in the case of metal, the conduction is because of the motion of electron. Metal ની અંદર electrons ના motion થી electricity generate થાય છે. પણ electrolyte, in the case of electrolyte, the conduction is due to the motion of positive and negative ions. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ની અંદર પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન્સ ના કારણે એના મોશન ને કારણે કરંટ જનરેટ થાય છે. In the case of semiconductor, the current is produced because of the motion of electrons and holes. Now what is hole? We will discuss in the 14th chapter. But semiconductor માં કરંટ કેમ જનરેટ થાય છે? તો ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ ને કારણે. અને આયોનાઇઝ્ડ ગેસ હોય, so in the case of ionized gas, the electric current is formed due to the motion of positive charge and electron. Ionized gas ની અંદર positive charge અને electron ના motion ને કારણે current generate થાય છે. તો અલગ-અલગ મટીરિયલ ની અંદર કરંટ પ્રોડ્યુસ થવા માટે દરેક વખતે કઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ is not the only the source of the electric current. It is not every time that the electron produce the electric current. Charge can produce the electric current. Charge can be electron, can be ions. So in the different material, the current is formed because of different type of charges. અમુક ચાર્જીસ એવા હશે કે જેનો મોબિલિટી સારો હશે, એની ફ્રીનેસ વધારે હશે, તો એ વધારે કરંટ જનરેટ કરશે. અમુક ચાર્જ એવા હશે કે જેની મોબિલિટી ઓછી હશે, જેમ કે ઇલેક્ટ્રોન અને if we compare the mobility of electron and ion, તો obviously કોની મોબિલિટી વધારે હશે? ઇલેક્ટ્રોન્સ અને આયન બંનેનો કમ્પેરિઝન કરો તો કોની મોબિલિટી વધારે હશે? ઇલેક્ટ્રોન. Obviously electron can easily move. So what I mean to say is that in the different kind of material, the conduction takes place because of a different kind of charge carrier. Some of the charge carrier having large mobility and some of the charge carrier having a small mobility. So that is why we have to discuss the mobility of the charge carrier. So now the question arises that चलो mobility શા માટે ડિસ્કસ કરવાની તો ખ્યાલ આવી ગયો, because અલગ-અલગ ચાર્જ કેરિયરના મોબિલિટી અલગ-અલગ હોય, તો એ કોનો મોબિલિટી કેટલો છે ખબર પડે એટલા માટે આપણે મોબિલિટી ડિસ્કસ કરીએ છીએ. But the question is that how will you define the mobility in the physics? So the definition of the mobility in the physics is a drift velocity of a charge carrier
ચાર્જ કેરિયરનો મતલબ જે કરંટ ને પ્રોડ્યુસ કરે છે એને ચાર્જ કેરિયર કહેવાય. જે કરંટ જેને કારણે પ્રોડ્યુસ થાય છે એને ચાર્જ કેરિયર કહેવાય. તમને કોઈ એવું પૂછે કે વોટ ઇઝ ધ ચાર્જ કેરિયર ઇન ધ મેટલ, મેટલની અંદર ચાર્જ કેરિયર કોણ છે, તો તમે શું લખશો? ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોન. What is the charge carrier in the semiconductor? Then you will answer. બોલો શું કહેશો? હોલ ને ઇલેક્ટ્રોન તમે કીધું. Hole and electron. What is the charge carrier in the electrolyte? આયન્સ. પોઝિટિવ. Ions. Okay. So mobility I am going to define. So question is mobility. Its a symbol is a mu. It's a definition. Mobility is a drift velocity of a charge carrier per unit electric field. This is defined as a mobility. Drift velocity of a charge carrier per unit applied electric field is defined as a mobility. So what should be the unit of the mobility? Dimensional formula and unit of the mobility is a IMP MCQ. IMP SQ MCQ. Chalo, what is the unit of the mobility? So drift velocity, the unit of the drift velocity is obviously meter per second. And what is the unit of electric field? What if you remember potential difference V equals to ED. So electric field no formula V by D પણ થાય. So unit of the electric field is a volt upon meter પણ થઈ શકે. Electric field નો unit Newton per coulomb તો છે જ, Newton per coulomb તો છે જ, but apart from that the unit of the electric field is a volt per meter as well. So that's why the unit of the mobility is a meter square per volt per second. So that is the unit of the mobility. ચલો ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા તમે ડિરાઈવ કરી શકશો? ચલો કરી દઉં છું. મીટર સ્ક્વેર એટલે L2 પર વોલ્ટેજ પર સેકન્ડ. વોલ્ટનો ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા કદાચ ખબર નહીં હોય. M1 L2 T-3 A-1. So that is the dimensional formula of the volt upon T1. So finally the dimensional formula of the mobility M-1 L-2 T2 L0 થઈ જશે. The dimensional formula of a mobility M-1 L0 T2 and A1. So this is the dimensional formula of the mobility. A question is derive the equation of the mobility in the form of relaxation time. Derive the equation of a mobility in the form of relaxation time. So Dhruvi is there. Dhruvi is there. Dhruvi છે ત્યાં આગળ? Yes, sir. વૈભવી? Yes, sir. છે ને બે ક્વેશ્ચન મેં ચલાયા છે. એકદમ સિમ્પલ છે. હું આ લેક્ચર પત્યા પછી YouTube લિંક મોકલું છું. So you just check the YouTube link and it is important as well. It is a simple and important. Okay. Okay, sir. You just check the YouTube videos and if you find out then tell me on the WhatsApp. I will clear out the doubts. Okay. Okay. So right now we are discussing mobility. So mobility is nothing but it is the drift velocity of a charge carrier per unit electric field. Its dimensional formula and unit we had learnt. Now we are going to derive the mobility in the form of relaxation time. So as we know, the definition of the mobility is a drift velocity per unit electric field. But as you know, what is the formula of the drift velocity? If you remember, the drift velocity can be given by EE by m into tau.
So putting this value here, so that's why the mobility is comes out to be a, in the denominator it becomes E, and the numerator it becomes a E by m into tau. So electric field get cancelled, so remaining thing is a E tau by m. So this is the formula of the mobility in the form of the relaxation time. So this is the short note on the mobility. It's a definition, it's a unit and dimensional formula, and it's an equation in the form of relaxation time. Now one more extra question which is not in your textbook but was asked in the CBSE board. ये CBSE में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम टेक्स्ट बुक में नहीं है, but was asked in the CBSE. तो question was derive the mobility in the form of a conductivity. Mobility को conductivity में लाना है, vice versa derive the formula of the conductivity in the form of mobility. So question was conductivity in the form of mobility. ये question था. So अभी एक extra question है, conductivity in the form of mobility. Okay. So friends, we want to derive the formula of conductivity in the form of mobility. We know that J is equals to sigma E, and we also know that the J is equals to N VDE. Is that true? Is it so? Yes or no? हाँ के ना तो बोल दो. Yes, sir. Okay. So comparing both the formula, comparing both the formula, sigma E is equals to N VDE. Comparing them, sigma E is equals to N VDE. अब making the VD by E subject equation. So VD by E is equals to, can I say sigma by NE? नहीं अपने zoom आयो zoom तो आवे Can I say VD by E is equals to sigma by NE? But according to the definition, VD by E is what? चलो, what is VD by E? अरे बोल भी दो. Mobility. It is a mobility mu. So that's why mobility mu is equals to sigma by NE, and hence I can say the conductivity is equals to mu into NE. So this is the formula of a conductivity in the form of, this is the formula of conductivity in the form of mobility. So friends, अगर हम semiconductor की बात करते हैं, तो in the semiconductor current is produced both because of electron and hole. तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आपको रिजल्टेंट कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों का कंडक्टिविटी का एडिशन करना पड़ेगा. सो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कंडक्टिविटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल, नंबर डेंसिटी ऑफ होल इनटू ई. सो दिस इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला है दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मोबिलिटी. तो सेमीकंडक्टर के लिए रिजल्टेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया. सो दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द CBSE एग्जाम्स. इट वाज आल्सो आस्क्ड इन द गुजरात बोर्ड एज वेल, बट वाज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आई हैड
I had given this question into the our notes. मैंने notes में दिया हुआ ये question. So is it clear to you everybody? Yes, sir. Okay. Next question. Write down a question is discuss the formula of resistivity with the temperature. Question is formula of the resistivity in the form of the temperature. इसको मैं अभी निकाल रहा हूँ. Okay. So the next topic is the new topic is resistivity in the form of the temperature. अब जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं वो आपको डायरेक्टली याद रखना है. इट इज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उसको याद रखना है. ओके. So the question is relation between resistivity with the temperature. तो अभी हम रिलेशन डिराइव करेंगे टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी के बीच में. वो रिलेशन डिराइव नहीं करना है, उसको याद रखना है. तो रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी and temperature can be given by rho at any temperature T is equals to rho at reference temperature T0 1 plus alpha T minus T0. So this is the relation. आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखना है. मैं आपको यहाँ पे ये इक्वेशन में कौन से टर्म्स क्या है वो बताने वाला हूँ, बट इक्वेशन यू हैव टू रिमेम्बर. तो यहाँ पे T इज सम हायर टेम्परेचर एंड रो एट T का मतलब ऐसा हुआ, इट इज द रेजिस्टिविटी at T temperature. Rho at T0 का मतलब ऐसा हुआ, it is the resistivity at T0 temperature. Where T0 is the reference temperature. Reference temperature आपको दिया होगा, and alpha is the temperature coefficient of the resistivity. Alpha is a temperature coefficient of resistivity. चलो कोई मुझे बताएगा what should be the unit of the temperature coefficient of the resistivity? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? What should be the unit of a temperature coefficient of the resistivity? उसका यूनिट क्या होना चाहिए? कोई बताएगा? केल्विन इनवर्स. वेरी गुड. देखो यहाँ पे 1 का यूनिट नहीं है, 1 का यूनिट नहीं है, तो ये टर्म का भी यूनिट नहीं होना चाहिए. बट T माइनस T0 का यूनिट तो टेम्परेचर है, सेल्सियस होगा, केल्विन होगा. तो T माइनस T0 का जो यूनिट है वो तो टेम्परेचर का है, सेल्सियस या केल्विन.
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको यूनिटलेस बनाना है, एक टर्म को यूनिटलेस बनाना है। तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट है वो एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो या तो आप केल्विन इनवर्स भी कह सकते हो या सेल्सियस इनवर्स भी कह सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे काम आएगा, तो ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा, तो जब आपको कोई रेफरेंस टेम्परेचर दिया है एंड रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है, मतलब कोई स्मॉलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी दिया हुआ है एंड आपको कोई बड़े टेम्परेचर पे, लार्जर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, लार्जर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो आप लार्जर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे इस बेस पे 5 न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। बट कोई रेफरेंस टेम्परेचर पे अगर आपको रेजिस्टिविटी दिया हुआ है और लार्जर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको काम लगेगा। अब ये जो फॉर्मूला है उसको दोनों साइड, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है, रो एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू रो एट टी जीरो टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ये जो फॉर्मूला है उसको दोनों साइड L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो L बाई ए तो क्या हो जाएगा, R ये तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो रो L बाई ए तो रेजिस्टेंस है। तो ये जो सिमिलर फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर द रेजिस्टेंस एज वेल, द सेम फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर द रेजिस्टेंस एज वेल। तो ये फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स, इज इट अंडरस्टूड एवरीबॉडी? yes sir ओके, अब मैं मेरा जो नोट्स है उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स सो दैट यू कैन फाइंड आउट विच क्वेश्चन वी हैड लर्नड अबाउट। तो देखो हमने 9th क्वेश्चन तक तो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस किया कि डिराइव द फॉर्मूला रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ एंड एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर ऑन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। तो ये फॉर्मूला डिराइव किया और मेटल एंड सेमीकंडक्टर के बीच में, तो मेटल में एंड सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेराई होती है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद मोबिलिटी के बारे में डिस्कशन है, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहाँ पे डिराइव किया। और एक काउंटर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द मोबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा यहाँ पे, कंडक्टिविटी आएगा। डिराइव द इक्वेशन ऑफ द मोबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी आएगा, करंट नहीं, कंडक्टिविटी आएगा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने मोबिलिटी के फॉर्म में लाया हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने डिस्कस किया, राइट द फॉर्मूला गिविंग द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, विदाउट एनी प्रूफ आपको याद रखना है। उसके फॉर्मूला में यहाँ पे कौन सा चीज क्या है वो यहाँ पे सारा कुछ समझाया हुआ है कि भाई रो टी है, दैट इज रेजिस्टिविटी एट द टी टेम्परेचर, रो टी जीरो रेजिस्टिविटी एज द रेफरेंस टेम्परेचर टी जीरो, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट्स यूनिट इज अ सेल्सियस इनवर्स केल्विन इनवर्स। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि फॉर द मेटल वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड फॉर द सेमीकंडक्टर इट इज नेगेटिव। व्हाई इट इज सो, आई विल गिव यू द आंसर विद इन 1 मिनट। बट क्या लिखा है कि मेटल के लिए अल्फा के वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। तो ऐसा क्यों, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो। बट पहले मुझे ये बता दो कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल का क्या होता है, रेजिस्टिविटी का, एक्टिविटी कम होगी। मेटल की बात कर रहा हूं। मेटल के अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, इंक्रीज।
हाँ, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही थी, तो इसीलिए अल्फा पॉजिटिव है। देखो, अगर मेटल की बात करते हैं तो अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज ये अगर पॉजिटिव होगा तो ही हम ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ेगा, तो ये टर्म बढ़ेगा मतलब पूरा टर्म बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट सेमीकंडक्टर का डेफिनेटली अल्फा नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? तो अगर सोचो कि यहाँ पे अल्फा नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव के बदले क्या आ जाएगा? अगर आप अल्फा, नेगेटिव। हाँ, अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव के बदले नेगेटिव आ जाएगा, और ये 1 प्लस होने के बजाय 1 माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा सोचो, अगर अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये टर्म बढ़ेगा, बट ये टर्म अभी सबट्रैक्ट हो रहा है, तो जो टर्म सबट्रैक्ट हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज होगा। तो दैट इज व्हाई फॉर द सेमीकंडक्टर अल्फा मस्ट बी नेगेटिव एंड फॉर द मेटल अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज मेटल में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट अल्फा इज पॉजिटिव फॉर द मेटल एंड नेगेटिव फॉर द सेमीकंडक्टर। अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये जो चीज हमने मैथमेटिकली प्रूव किया उसी को ग्राफिकल हमने, जो भी चीज हमने अभी मैथमेटिकली डिस्कस किया उसी चीज को ग्राफिकली अब समझना है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी के बारे में है। तो वहां पे टेम्परेचर के साथ मेटल, सेमीकंडक्टर एंड एलॉयज का रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है उसका डिस्कशन है। देखो, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन ऐसा है कि ड्रॉ द रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर द मेटल्स, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया कि कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज। तो देखो, ग्राफ देख सकते हो आप, तो ग्राफ आप देख सकते हो कि कंडक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि विद द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर resistivity is also increases. Alpha is positive for the metal. For this kind of conductors below the 50 Kelvin temperature, rho versus temperature graph is non-linear. At a room temperature is almost linear, and at the high temperature it becomes once again non-linear. But one thing is confirmed, that as the temperature increases, resistivity increases for the metal. For alloys, देखो, एलॉयस स्पेशल टाइप के मटेरियल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, दो यहाँ पे चीज समझने लायक है। एलॉयस के बारे में यहाँ पे दो चीज समझने लायक है। एक चीज ऐसी है कि एलॉयस का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। देखो, आप ग्राफ में देख लो, तो ग्राफ में आप देखो, ये ग्राफ को थोड़ा मैं एनलार्ज कर रहा हूं, तो यहाँ पे ऐसा है कि रेजिस्टिविटी देखो 1, ये ग्राफ दिख रहा है आपको एलॉयस का? आर यू एबल टू सी द ग्राफ ऑफ एलॉयस? Yes, sir. यस सर। तो वहां पे आप देखो तो टेम्परेचर 1 से लेके इंटू 100 है, देखो ये इंटू 100 है, तो मतलब मैंने टेम्परेचर को 800 केल्विन तक बढ़ाया, 0 से लेके टेम्परेचर को मैंने 0 से लेके 800 केल्विन तक बढ़ाया, मतलब 800 केल्विन मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर को, बट तो भी उसका रेजिस्टिविटी कितना बढ़ रहा है? देखो, रेजिस्टिविटी इज जस्ट बिकम्स फ्रॉम 1.1 टू 1.2। देखो, ओनली मैंने टेम्परेचर को 800 केल्विन तक बढ़ा दिया तो भी रेजिस्टिविटी कुछ खास नहीं बढ़ती है। देखो, 1.1 से 1.2 ही होती है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि एलॉयस का जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो आई कैन से द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। Resistivity of alloy is almost independent of the temperature.
वो टेम्परेचर के साथ बहुत नहीं बढ़ती है। और दूसरी बात यहाँ पे समझने लायक ये है कि यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर है तो भी देखो आप 0 केल्विन टेम्परेचर मैंने कर दिया है तो भी उसका रेजिस्टिविटी 0 नहीं है। देखो 0 केल्विन टेम्परेचर होने के बावजूद एलॉयस का रेजिस्टिविटी 0 नहीं होता है। while in the case of देखो इन द केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर 0 करते हो तो उसका रेजिस्टिविटी भी 0 हो जाता है। देखो कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर 0 करते हो तो उसका रेजिस्टिविटी भी 0 होता है। while in the case of alloys at the absolute 0 Kelvin temperature also, its resistivity does not become 0. Because of this fact, this fact is useful to check the purity of metal. अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि ये प्योर गोल्ड है, अगर कोई ऐसा बता रहा है कि ये प्योर गोल्ड है और मुझे उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दूंगा, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दूंगा। और अगर उसका रेजिस्टिविटी 0 मिलता है, तो ऐसा कह सकते हैं दैट शुड बी अ प्योर मेटल, बिकॉज प्योर मेटल का 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी 0 होता है। बट अगर 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी 0 नहीं मिलती है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो एलॉय है, उसमें कुछ डाला हुआ है। इट इज अ मिक्सचिंग ऑफ द मेटल्स। तो मेटल का प्योरिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है। तो एलॉय के बारे में दो चीज समझने लायक है। एक तो उसका रेजिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, नंबर 1। इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि उसका अल्फा कितना होगा? कोई मुझे बताएगा एलॉयस का अल्फा का वैल्यू क्या होगा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द अल्फा फॉर द एलॉयस? कोई बताएगा? नेगेटिव? नहीं, टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0, सही बात है। एलॉयस का अल्फा टेंड्स टू 0 होता है, बिकॉज अगर आप देखो कि ये फॉर्मूला में अगर आप ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो वहां पे अल्फा का वैल्यू 0 कर दो तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि मेटल के लिए अल्फा कैसा होता है तो पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का अल्फा कैसा होता है तो नेगेटिव, बट एलॉय का अल्फा कैसा होता है, एलॉय के लिए ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो टेंड्स टू, आपको लिखना है टेंड्स टू 0। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये एलॉयस के बारे में लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है। लिखा है कि इन द नाइक्रोम विच इज द एलॉय ऑफ द निकल एंड कॉपर, निकल एंड क्रोमियम और निकल एंड क्रोमियम, द रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, about 100 ohm into meter. Its resistivity is non-zero at the 0 Kelvin temperature as well, and its resistivity is less dependent on the temperature. So two characteristic is important here. एक तो वो 0 केल्विन पे 0 नहीं है और दूसरी टेम्परेचर के साथ वो इंडिपेंडेंट है। The resistivity of manganese, which is the alloy of the copper, manganese and nickel, is mostly independent of the temperature. The resistivity of the pure metal is about 0 at 0 Kelvin temperature. This fact is useful in the measuring the purity of the metal. तो मेटल के प्योरिटी को चेक करने के लिए ये फैक्ट का यूज होता है। एंड लास्ट वन इज अ सेमीकंडक्टर। तो हमको पता है कि सेमीकंडक्टर में क्या होने वाला है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ने वाली है या डिक्रीज होने वाली है? डिक्रीज। तो यहाँ पे ग्राफ देख लो, तो ग्राफ देख सकते हो आप, अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव है तो सेमीकंडक्टर के अंदर लाइक अ सिलिकॉन, कार्बन एंड जर्मेनियम, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है, वो ग्राफ में भी शो कर रहा है, दिख रहा है। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसमें से बहुत सारे SQ MCQ पूछ सकते हैं। From this question SQ and MCQ can be asked. आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो 10, 11, 12 जो है वो आपको एज ए 2 मार्क प्रिपेयर, 2 या 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। ये 13 क्वेश्चन फॉर एनली MCQ। 10, 11, 12
2 या 3 मार्क्स में 13 एंड 14 भी एमसीक्यू, 13 एंड 14 दोनों क्वेश्चन आपको एज ए एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। 14 क्वेश्चन देख लो आप, उसमें कुछ भी नहीं है। क्लासीफाई द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बेस पे मटेरियल को क्लासीफाई करो। तो सीधी सी बात है, जो मटेरियल ज्यादा कंडक्टिंग है, जो ज्यादा कंडक्शन कर रहा है, उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा? कम होगा। कम होगा। और जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी है, जिसका प्रॉपर्टी इंसुलेटिंग है, तो उसका रेजिस्टिविटी कैसा होगा? ज्यादा। बहुत ही ज्यादा होगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट। और जो दोनों के बीच में है, नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, दोनों के बीच में है, तो उसका रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होगा बट इंसुलेटर से लेस कम होगा। दैट्स इट। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखो, मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। फॉर द परफेक्ट 100% प्योर, फॉर द परफेक्ट कंडक्टर the value of the resistivity is 0 and conductivity becomes infinite. बट ये तो आइडियल कंडक्टर की बात है, आइडियल कंडक्टर कभी होता ही नहीं है। अगर होता है तो उसका रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगा, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगा। बट जनरली मेटल बिहेव एज अ कंडक्टर, तो मेटल का देखो तो आप रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, 10⁻⁶ ओम मीटर टू 10⁻8 इंटू ओम मीटर। तो मेटल का रेजिस्टिविटी आप देख सकते हो कि बहुत ही कम है। फॉर द परफेक्ट इंसुलेटर, जो परफेक्ट इंसुलेटर है, तो उसका रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगा, कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, परफेक्ट इंसुलेटर है। तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कब आएगी? तो उसका रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो और कंडक्टिविटी 0 हो। फॉर द मटेरियल लाइक अ सिरामिक, रबर एंड प्लास्टिक, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स, 10⁻18 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द प्योर कंडक्टर। तो देखो आप, देखो इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे आर्सेनिक है, सॉरी सिरामिक है, रबर है, प्लास्टिक है, तो उसका रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, तो होना ही चाहिए ना, वो इंसुलेटर है। रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल बट लेस देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर जो है उसका रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होगा बट इंसुलेटर से कम होगा, वो बीच में है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, ये तीसरी बार आया कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? સર એક ડાઉટ છે। आप बोलो। સર અગર જે કંડક્ટર છે એ અગર આઈડિયલ છે તો એની રેઝિસ્ટિવિટી પર ટેમ્પરેચર નો ઇફેક્ટ નહીં પડે? આઈડિયલ નો મતલબ એવો થયો કે આઈડિયલ છે એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે એનો રેઝિસ્ટિવિટી 0 થાય અને કંડક્ટિવિટી ઇનફાઇનાઇટ થાય, પણ કોઈ ઓબ્જેક્ટ આઈડિયલ છે જ નહીં। आइडियल कंडक्टर और आइडियल इंसुलेटर इज नॉट पॉसिबल। प्रेक्टिकली कंडक्टर्स અને ઇન્સ્યુલેટર હોય, આઇડિયલ કંડક્ટર અને આઇડિયલ ઇન્સ્યુલેટર હોય જ નહીં, એટલે એ છે જ નહીં, પછી એનો ટેમ્પરેચર સાથેનો ડિપેન્ડન્સની વાત જ ના આવે। ઓકે સર, એ છે જ નહીં એટલે ટેમ્પરેચર ડિપેન્ડન્સની વાત જ ના આવે। ઇઝ ધેટ ક્લિયર? યસ સર, યસ। Okay. So friends, today I am going to confine my lecture up to this topic. So now I am going to complete the lecture. Tomorrow we will meet at the same schedule, with the same schedule. Tomorrow we have the lecture at the same time. Okay. So the homework, आपको ये सारे क्वेश्चन एक एक बार लिखना है। होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चंस ओनली वंस। ओके, तो कौन कौन से क्वेश्चन आज मैंने कराए? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो दिस 5 क्वेश्चन शुड बी डन वंस। फ्रेंड्स, आप मेरी बात सुनो, ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया लॉकडाउन का। आपको ये मेंटालिटी रखना है कि आपको यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना है। मैं यहाँ से मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आप पढ़ पाओ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा माइंड सेट कर दो
और यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं हम, उसको आप साथ साथ में करने का ट्राई करो प्लीज। अभी मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ कि वो नहीं कर रहे, होमवर्क भी नहीं भेज रहे, तो वो अच्छा चीज नहीं है आपके लिए। ये टाइम अगर एक बार निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अगर थोड़ा माइंड सेट करते हो और साथ साथ में होमवर्क करते हो, थोड़ा लर्न बाय हार्ट करते हो, तो ये इजीली प्रोसेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आप थोड़ा माइंड सेट करो और यहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट्स लगाओ। जितने भी एग्जाम हम लेते हैं उसको देने का ट्राई, मतलब उसको अच्छे से देने का ट्राई करो। अदरवाइज लास्ट में ये सब सारी चीज जब एक साथ ये कंबाइंड होगा तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो साथ में काम करो प्लीज। कल वापस से हम मिलते हैं। अच्छा, किसी का फीस पे करना बाकी है तो प्लीज अब फीस भी पे कर देना। फीस बाकी है तो फीस भी पे कर देना। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? ओके, so I am completing my lecture.